चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD. Now here we will be looking at several many application of derivative, rather particularly the first derivative of the function. और उसमें से जो ज्यादातर है बच्चों that are based on the geometrical interpretation of first derivative. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो geometrical interpretation को समझते हैं that how do we interpret derivative of a function at some x geometrically. ठीक है, तो यहां पे देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका फंक्शन है f of x और इसका डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x इवैल्यूएटेड एट सम पॉइंट मे बी अल्फा. Now what does that mean geometrically? Geometrically इसका क्या मतलब है? तो अगर हम यहाँ पे एक कर्व बनाएं कुछ ऐसा, and if I say that this is the curve of y is equal to f of x. अब x is equal to अल्फा जब हम यहाँ पे कर्व में कहीं रखेंगे तो हमें मान लीजिए हमने यहाँ पे x is equal to अल्फा डाला तो ये पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा मिल गया. Obviously when you substitute x is equal to alpha here you will get some y, so that will give you a point on the curve. So if I say that this is nothing but point A on the curve. अब इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे tangent ड्रॉ करते हैं बच्चों, now I claim that this is tangent to the curve at the point and I believe all of you must be knowing what tangent stands for. ठीक है, तो tangent to the curve at the point A. Now द स्लोप, देखिए लाइन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों, उसका डायरेक्शन, और वो डिटरमाइन होता है उसके स्लोप से इन 2 डायमेंशन. ठीक है, तो 2 डायमेंशन में जो लाइन का स्लोप है वही उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है. और ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट ए is actually given by the derivative of the function at x is equal to alpha. Rather I will say derivative of y with respect to x evaluated at the point a alpha comma beta gives you the slope of the tangent to the curve at a. So that gives you slope of tangent to the curve at a. ए पॉइंट पे जो कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो उस टैंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे अगर हम y इज इक्वल टू fx में डेरिवेटिव dy बाय dx निकालें एट दैट पॉइंट तो वो दोनों चीजें एक ही वैल्यू होगी. ठीक है, सो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन evaluated at a point gives us the slope of the tangent to the curve at that point. ये हो गया इसका geometrical interpretation. And as I said in the beginning of the lecture that most of the application is based on its geometrical interpretation. तो देखिए सबसे पहले एक बार जल्दी से हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से how to find slope of the tangent like for a given question. तो मान लीजिए हमने कहा find slope of tangent to the curve. So find slope of tangent to the curve y square is equal to x cube minus 7 evaluated at the point 2 comma minus 1. अब एक चीज आप यहां पे समझें कि जब भी हम टैंजेंट की स्लोप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं एट द पॉइंट, दैट सिंपली मींस द पॉइंट शुड बी ऑन द कर्व. तो जो पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों. दैट यू कैन इजीली चेक हियर. यू सब्स्टिट्यूट x by 2, you substitute y by -1, it will satisfy the curve. Now how to find slope? So to get slope I will say get dy by dx. To get slope imply get dy by dx. तो आप dy by dx निकाल लें एट द पॉइंट 2 कॉमा -1. बस इतनी सी बात है. आपको रिलेशन यहां पे दिया हुआ है x और y का. ठीक है, उस रिलेशन की सहायता से आप यहां पे dy by dx निकाल लें. नाउ डिफरेंशिएटिंग द गिवन रिलेशन बोथ द साइड्स. Now if I differentiate y square with respect to x, so you will get 2 times y times dy by dx. And on the right side it will be 3x square. So that means your derivative dy by dx is actually 3x square over 2y. But हमें तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना है और पॉइंट है 2 comma -1. So to be evaluated at 2 comma -1. Now how much is the value? So it's simple. Now substitute x by the given abscissa of a given point and y by the ordinate of given point. तो 3 into 4 हो गया 12.
2 इंटू -1 हो गया -2, तो ये हो गया -6, तो दैट गिव्स यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। So with the help of this example, I try to demonstrate कि कैसे आपको slope of tangent निकालना है, because अगर slope of tangent निकाल लिए और बाकी, अब हम लोग जरा एक बार straight lines के कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो ये सामने आपके स्ट्रेट लाइंस के रिजल्ट हैं, जहां पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाउ टू रिलेट द स्लोप ऑफ टू लाइंस इफ दे आर पैरेलल परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन जनरल फॉर्म, तो उसका स्लोप क्या है, तो वो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है स्ट्रेट लाइन से संबंधित, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, उसको जो आप अच्छे से देख लें। तो इन रिजल्ट्स की हेल्प से और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने समझा है उसकी हेल्प से वी कैन वेरी इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं। अब देखिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हमें आता ही है, तो पहला एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ y is equal to f of x. So to the curve y is equal to f of x at the point A, I call it, let's say, alpha comma beta. Again I am repeating, at the point means the point should be on the curve. ठीक है, तो अब चूंकि हमें पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या होती है, so it's y minus beta is equal to slope of tangent, since we are talking about tangent to the curve, so the slope has to be the slope of tangent. So y minus beta is equal to the slope of tangent, which is given by dy by dx evaluated at the point A. तो ये हो गया slope of tangent times x minus alpha, as simple as that. तो as I said, एक बार दोनों चीजें पता चल जाएं कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, और एक बार अगर हम याद कर लें कि लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होती है, क्योंकि एट द पॉइंट चाहिए तो पॉइंट आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of fx, y is equal to f of x evaluated at a point alpha comma beta. Again the point should be on the curve. तो अगर given point जो कि कर्व पे है, अगर हमें नॉर्मल चाहिए, so how will you get that? So basically how do we define a normal? Normal होता क्या है बच्चों? तो normal is a line which is perpendicular to the tangent at its point of contact. ये अगर tangent है तो इस tangent के perpendicular line अगर हम इसके A point of contact से पास करता हुआ निकाल दें, तो ये normal to the curve at A है। So that's your normal, which is again a straight line. ठीक है, evaluated got at A point पे ये normal है। अब चूंकि tangent और normal they are perpendicular to each other, hence as we have seen in the result, we know how to find the slope of the normal. So here I will first of all say that slope of normal, so I am representing it as m subscript capital N, slope of normal, which will be -1 times 1 over slope of tangent. इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस बीटा यूजिंग द सेम पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट पता है और स्लोप हम टेंजेंट की हेल्प से निकाल ही लेंगे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स x माइनस अल्फा। सो दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चंस हम लोग देख ही लेंगे, उससे पहले जरा एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड रिजल्ट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। थर्ड इज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कर्व आपका कुछ ऐसे है और जो सेकंड कर्व है वो हमने मान लिया कुछ ऐसे है। नाउ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज A। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिफाइन द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व? तो वो डिफाइन देखिए, किसी भी एंगल के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइन का होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, और किसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू नीड डायरेक्शन यू विल टेक हेल्प ऑफ लाइन। सो हियर वी डिफाइन इट एज द एंगल टू द कर्व, एंगल
between the tangents to the curve at the point. So जो व्हाइट कलर में कर्व है उसका ये टेंजेंट है और जो येलो कलर में कर्व है उसका ये टेंजेंट है व्हाइट में, ठीक है। तो येलो का ये व्हाइट में टेंजेंट है, व्हाइट का येलो में टेंजेंट है। नाउ एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स इफ आई कॉल इट टू बी थीटा, so angle between two tangents at the point of intersection is defined as the angle between two intersecting curves at that point. इस point पे अगर curves के बीच के angle की बात की जाए, so this is how you define the angle. Now how can we find the angle? So obviously we know the result, और result हमें पता है tan of theta, चूंकि tangents के बीच का angle है lines, so उनके slope m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. We have already seen that result on the slide. ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब बस यहीं से तो आपको m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वन कर्व, m2 is slope of tangent to another curve, and how to find the slope with the help of derivative. But for that we need this point. ये पॉइंट या आपको गिवन होगा या आप निकाल पाएंगे या आप इसे एज्यूम करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट application of derivative based on the same concept of tangent, normal, angle, whatever they are, ठीक है। तो ये तीनों चूंकि रिलेटेड थे इसलिए इन्हें हमने यहां पे एक साथ देख लिया बच्चों। Now let us see few examples based on all these things. अब एक बार जरा इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल उदाहरण हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square plus 9. But in this case the point is not given on the curve, rather it's given that the tangent which passes through the point origin 0,0. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि अगर देखिए पॉइंट कर्व पे दिया हुआ है तो फिर तो बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे इस फॉर्म का यूज करेंगे एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सीधा सीधा है इफ द पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व, बट ऑब्वियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट पॉइंट ऑन द कर्व, तो वेरिएशन बहुत सारा पॉसिबल है। तो एक वेरिएशन जो बस उससे आप ये समझ जाएं कि अगर पॉइंट कर्व पे नहीं दिया है तो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू इनिशिएट द सॉल्यूशन। तो यहां पे माय सजेशन इज ऑलवेज टू स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय अज्यूमिंग अ पॉइंट ऑन द कर्व। सो लेट ए व्हिच इज अल्फा कॉमा बीटा से बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमने इस कर्व पे एक पॉइंट मान लिया। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि अगर पॉइंट कर्व पे नहीं दिया या पॉइंट ही नहीं दिया, इन एनी केस if the point is not given on the curve, whatever else is given, you always start your solution by assuming a point on the curve. Now since we have assumed the point on the curve, this implies this point should satisfy equation of the curve. तो यहां से ये तो ऑब्वियस है ना कि आपका ये जो पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, यहां तक तो 100% आपको ये करना है। अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी विल प्रोसीड अहेड, बट ये भी पक्का है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप, इन सब की बातें हैं, तो स्लोप तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। सो देयरफॉर dy by dx, चलिए dy by dx निकाल लेते हैं एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, बिकॉज डेरिवेटिव की वैल्यू सिर्फ उसी पॉइंट पे जो पॉइंट कर्व पे है, सिर्फ उसी पॉइंट पे वो स्लोप देगी बच्चों, ठीक है, एट नॉट एट एनी अदर पॉइंट विच इज नॉट ऑन द कर्व। तो हमने उसी पॉइंट ए पे जो हमने पॉइंट कर्व पे माना है उसमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, तो ये 2 अल्फा आ जाता है। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली बिकॉज अब आप लोग हर चीज समझ चुके हैं। ये आ गया क्या, ये आ गया m विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए, टू द कर्व एट ए अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो विदाउट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाउ कैन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन। जब तक टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक ओरिजिन, वो पॉइंट उस टेंजेंट के ऊपर है, ये कैसे यूज करेंगे, बिकॉज पॉइंट इज ऑन द कर्व ऑन द लाइन। ये इंफॉर्मेशन यूज करने का एक ही तरीका है कि आप उस पॉइंट को उसकी इक्वेशन पे, कर्व की या लाइन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा देंगे। सो देयरफॉर इट्स क्लियर that we need equation of tangent. So equation of tangent at A पर equation of tangent यहां पे क्या होगा? So this is y minus rather beta is equal to slope of the tangent which we got as 2 times alpha
times x minus alpha. Now this pass through origin. Now this line is actually passing through the origin. ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है बच्चों, तो ओरिजिन इस पे जरा सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ऑब्वियसली ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप किसकी जगह रखेंगे, तो यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इट बाय इन प्लेस ऑफ x एंड y द वेरिएबल ऑफ द लाइन। तो y की जगह 0 रखा तो माइनस बीटा, x की जगह 0 रखा तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहां से बीटा आ गया 2 अल्फा स्क्वायर एंड वी गॉट रिलेशन 2 बिटवीन अल्फा एंड बीटा। Now we have two relation. First one, beta is equal to alpha square plus 9. Second one, beta is equal to 2 alpha square. Solving 1 and 2, we get 2 alpha square is equal to alpha square plus 9. Hence, alpha is either plus 3 or minus 3. What does that mean? That means there are two such point. जब alpha 3 है तो beta हो जाएगा 3 square into 2, 18. और जब अल्फा माइनस 3 है तो भी बीटा स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर विच इज 18. सो देर आर टू सच पॉइंट्स एंड वी नीड टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू फॉर बोथ द पॉइंट्स या टू द कर्व एट बोथ द पॉइंट्स. ठीक है, तो अब कुछ देखिए, 2 इंटू अल्फा स्लोप था तो 2 इंटू 3 6 इसका स्लोप हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा. सो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द फर्स्ट पॉइंट, say at 3,18 is how much? So y minus beta, which is 18, 2 alpha times, so 2 into 3 6 times x minus 3. So what do we get here? So we get y is equal to 6x. ये हो गई पहली इक्वेशन. ठीक है, इसी तरह से at the point minus 3,18 तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y minus 18 is equal to, slope is 2 times alpha, which is 2 times minus 3 is minus 6, x minus of minus 3 is plus 3, so y is equal to minus 6x is the another tangent. So this is how we can find equation of tangent to the curve at a point. That too, if a point is not given on the curve and you still need the equation of tangent or whatever you want to use regarding the equation of tangent, ये ध्यान रखिएगा, you will always, you should start your solution by assuming a point on the curve. ठीक है बच्चों, द सेम इज द केस विद नॉर्मल ऑल्सो. बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नॉर्मल में भी फ्रेम हो सकते हैं. तो वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन दो ही पॉसिबल केस हैं, या पॉइंट कर्व पे दिया होगा जो कि नहीं दिया होगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो पॉइंट अगर कर्व पे नहीं दिया है तो अप्रोच सिंपल सीधी सी है, स्टार्ट योर सोल्यूशन बाय अज्यूमिंग पॉइंट ऑन द कर्व. उसके बाद फिर आपको पता है हाउ टू मूव अहेड. ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकंड एग्जांपल. Second example is find angle between the curves obviously at their point of intersection. So I'm not writing it here, but that's assumed, that's understood. Between the curves y square is equal to x and y is equal to x square. ये दो कर्व है, इनके बीच में हमें पॉइंट ऑफ इनके बीच का एंगल निकालना है at their point of intersection. ठीक, अब देखिए, सबसे पहले गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और इफ यू हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन गेट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, तो सिंपल है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. y की वैल्यू उठाई, वहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x raised to the power 4 is equal to x आ गया. फैक्टराइज कर लिया, यू गॉट टू सॉल्यूशंस हियर. ईदर x is 0 or x cube is equal to 1, so that will just give one real value, x is equal to 1. So these are two possible values of x. ठीक है, यहां पे एक छोटी सी गलती जो अक्सर बच्चे जल्दबाजी में कर जाते हैं, they cancel the x here. So while solving an equation you should avoid cancelling the common factor both the side, because cancelling the common factor imply that you will lose one or the other root. कम से कम एक रूट तो आप लूज कर जाएंगे. तो अगर आप कैंसिल कर देंगे तो you will find you will get only one point, that is at x is equal to 1. ठीक है, तो ये बात याद रखना है. तो ये देखिए, x 0 आ गया, x 1 आ गया. So therefore the points of intersection are, जो यहां पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो है जब x की जगह हमने यहां पे 0 रखा तो 0, 0,
और जब x की जगह 1 रखा तो 1, सो दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द 2 गिवन कर्व्स। 2 कर्व के लिए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब एक चीज और, अगर किसी ने कहा कि नहीं भाई हम तो 1 यहां रखेंगे तो y² इज इक्वल टू 1, तो फिर तो 2 पॉइंट और दिख रहे हैं, y+1 या -1, बट नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए y निगेटिव नहीं हो सकता फ्रॉम दिस कर्व, y इज इक्वल टू x², तो आपको चूंकि पॉइंट तो कॉमन पॉइंट होना है ना बच्चों फॉर बोथ द कर्व्स, so it should satisfy both the curves, and from here we know that y can't be negative, तो इसलिए एक ही पॉइंट और आएगा 1, 0, तो खैर दोनों में ही साफ दिख रहा है, और दूसरा पॉइंट 1, 1 ही होगा बच्चों। so these are 2 points. now let us try to get the angle between the curves at these 2 points. तो सबसे पहले हम निकालते हैं at 1, 1. so deliberately I am looking at this 1, 1 first and then we will go for 0, 0. तो देखिए 1, 1 के लिए for the curve y² is equal to x, the slope will be dy by dx, तो dy by dx कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2y. so therefore m1, the slope of tangent to the curve at the point 1, 1 will be half. ये आ गया हमारा। and for the curve y is equal to x², dy by dx will be, how much will it be? 2x. so this imply your slope m2 will be 2. ये आ गई दूसरी slope. now so therefore tan theta, angle between the curves, I assume that angle to be theta, m2 minus m1, तो 2 minus half बटे 1 plus 2 गुणे half, 2 into half, how much is that? so it's like ये तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये 3/2, so it seems to be 3/4. ठीक है, तो मान लेते हैं 3/4 आ गया, बट सिंस वी नीड थीटा, तो अब तो आपको पता ही है कि थीटा क्या आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4. so that's one answer. so this is the angle between the curve at the point 1, 1. तो इस पॉइंट पे इन दोनों कर्व के बीच का ये एंगल है बच्चों। बट मूविंग अहेड फॉर द सेकेंड पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट भी तो था ना अपने पास, तो सेकेंड पॉइंट इज एट 0, 0. इंटरेस्टिंग, 0, 0 के लिए फॉर कर्व y² is equal to x. now what is your dy by dx? so it's 1/2y. now if you try to evaluate at 0, what will be the value of derivative dy by dx? so obviously at 0 the slope m is undefined because you are getting 0 in the denominator. so m1 is undefined. Slope of tangent to the curve, this curve y² is equal to x at the point 0, 0 is undefined. now similarly for y is equal to x², now if you get its derivative dy by dx, if it is 2x, so that means the slope is 0 here. but if one slope is undefined, then how can we get angle between the lines? भाई अगर एक लाइन ऐसी है जिसका स्लोप ही अनडिफाइन है, तो फिर हम कहां से m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 यूज कर पाएंगे फॉर्मूला? ठीक है, तो दैट हियर व्हाट वी नीड टू नो इज वी नीड टू नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइन whose slope is undefined. तो अगर किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, तो यहां से ये इंप्लाइड है बच्चों कि वो लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन ही एकमात्र ऐसी लाइन है जिसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। रीजन ये है कि वर्टिकल लाइन का मतलब एंगल एट विच इट इज इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री, और tan 90 स्लोप क्या होता है? tan ऑफ दैट एंगल, सो tan 90 इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर अब यहां पे इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पर्पस, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि वेन एवर, वेयर एवर, व्हाट्सएवर, इतने सारे एवर, कहीं पे भी, कभी भी, किधर भी, अगर आप स्लोप से संबंधित कोई भी इक्वेशन, समीकरण हल कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, इफ एट ऑल यू गेट एनी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन or contradictory result, or you get a solution like slope is undefined, so you should know that slope की बात obviously line के लिए होगी, तो जो line है जिसके लिए आप slope निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो line आपकी vertical line है। So if the slope is undefined or you get any contradiction while solving an equation related to slope, you should know that the line is a vertical line। तो ये line vertical है और slope 0 किसका?
स्लोप 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का. So here I say that we won't be able to apply formula, and here I will say we don't need to apply any formula because angle between vertical and horizontal line is 90 degrees. So the angle between the two curves at the point 0, 0 is 90 degree. तो 0, 0 ओरिजिन पे ये जो दो कर्व हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यदि ऐसा होता है, if such thing happens, then we say that the curves are orthogonal. So two curves are said to be orthogonal if they intersect at right angle at any point of intersection. तो उस पॉइंट पे वो कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएंगे बच्चों. ठीक है. So that was the second question based on angle of curves at their point of intersection. So I tried to discuss each and everything to find the point of intersection and then how to get the angle and what can be the possible interpretation of anything which something different from the routine. ठीक है. तो उसके इंटरप्रिटेशंस क्या है, वहां से रिजल्ट कैसा आएगा, सब हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया है बच्चों. अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. अब जो आगे के दो क्वेश्चन हम लेने आ रहे हैं, दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2017, 18 एटसेट्रा. पास के ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं. फ्रॉम देयर यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी मेंस लेवल में थोड़े ठीक से ही आते हैं. इट्स नॉट दैट टफ बच्चों. सो लेट अस लुक अप एट दोस क्वेश्चंस नाउ. तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट प्रॉब्ली 2017-18 के आसपास का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज फाइंड, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ऑब्वियसली इक्वेशन ही निकालना था, क्वेश्चन ऐसा ही था, बस थोड़ा सा चेंज है. I am just asking you to find the equation of normal here. So find equation of normal to the curve at the point where the curve intersect the y-axis or meet the y-axis. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे point निकाला जा सकता है. So the point at which we need the equation of normal is, that point can be obtained since the point is on the y-axis. You will be substituting x by 0 in the given equation. जो कर्व की इक्वेशन है इसमें आप x की जगह 0 रख दीजिए, आपको y ऑर्डिनेट आ जाएगा. तो जगह अगर x ये 0 रखे तो ये 0 और ये 0. y कितना आ गया? So x is 0 and then y is 1 here, isn't that? So 6y is equal to 6, so y is 1 here बच्चों. So this is the point on the curve at which we have to get the equation of normal. तो देखिए क्वेश्चन ये आसान हो जाता है क्योंकि पॉइंट अगर कर्व पे मिल गया फिर तो कहानी खत्म हो गई. इसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे और देन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द कर्व लाइक dy by dx हियर. तो उसके लिए क्या करते हैं, क्वोशिएंट टूल यूज कर लेते हैं. ये सारा का सारा टर्म हमने यहां से उठाया और इसे राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ले गए. सो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 6 ओवर, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स. ठीक है बच्चों. तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कहां पे बार बार प्रोडक्ट टूल लगाते फिरेंगे. सो इट्स सिंपल. तो इसका आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. सो डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा, इसका आपको क्वोशिएंट टूल तो याद ही होगा बच्चों डिफरेंशिएशन का. डिनोमिनेटर में ये इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, derivative of numerator which is 1 minus numerator as it is and derivative of denominator which is 2x minus 5. तो ये है यहां पे 2x minus 5 आ गया. Now we have to evaluate this value at 0, 1. ठीक है. तो y है नहीं कहां, यहीं पर यहां पे कहीं पे भी इस डेरिवेटिव में dy by dx में there is no y here. तो y को तो कोई रखना नहीं है. x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, 0 से. तो why will I solve it further? सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, हम कहेंगे भाई सीधे सीधे पहले x0 रख लेते हैं, चीजें अपने आप ही आसान हो जानी है. x को 0 रखा, ये 6 बचा, 6 माइनस x को 0 रखा तो ये 6 बचा और ये माइनस 30 तो ये प्लस 30 हो गया. x को 0 रखा, ये दोनों चले गए, ये 36 हो गया. वाह. एंड यू गॉट द स्लोप ऑफ tangent to the curve at the point 0, 1 as 1. और हो गई कहानी खत्म. क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए. सो यू विल से ओके भाई देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज एक्चुअली -1 ओवर द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो इट इज -1 हियर. सो देयरफॉर
equation of normalcy. So such was the question in 2017 or 18 whatever in JEE mains का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए कितना आसान है। सो y minus beta 1 which is equal to slope of the normal x minus alpha which is 0. So equation is x plus y is equal to 1 and that's it. ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, मतलब x0 है जहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी इन द एंड वन मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू कर्व्स। So that's your last example based on whatever we have discussed till now, tangent, normal and angle between two intersecting curve. तो question ये है कि it's given that these two curves intersect at right angle and then we have to find the value of B here. तो फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे B unknown है, तो instead of trying to find the point of intersection, let us देखिए बिना point of intersection के तो कुछ होगा ही नहीं। रीजन, हमें स्लोप ऑफ द टैंजेंट तो उसी पॉइंट पे बात करनी है, so we need to get the value of derivative at that point only. So either you try to get that point of intersection or you may easily assume that point of intersection. So I will be here assuming it. So I will say let the point of intersection be. मान लेते हैं point of intersection है अपना A which is alpha comma beta. मान लिया ये point of intersection है। Now if this is the point of intersection and as I said the moment you assume a point like on the curve it must satisfy equation of the curve, तभी तो आप ये ensure करेंगे ना कि point curve पे है। तो अगर आपको ये ensure करना है कि भाई ये point of intersection है, तो how will you do that? So the only way is you satisfy this point on both the curve and get a relation. तो एक relation beta square is equal to 6 alpha आ गया और दूसरा रिलेशन आ गया 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16. So these are two relations which we got. Technically we can solve them to get alpha and beta, but we won't. Reason being यहाँ b involve है, कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सा ज्यादा लंबा सा आ जाएगा, तो let's not try to do that. आखिरी में जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो let us leave it like that only. Now slope of tangent to the first curve at the point A. So dy by dx at the point alpha comma beta. So shall I write it quickly here directly? So 6 over 2y. So this is 6 over 2 beta. Now that's your M1. Similarly M2 के लिए आप यहां से dy by dx निकालें, ठीक है। तो similarly M2. So slope of tangent to the other curve. So again, it's nothing but dy by dx evaluated at the point alpha comma beta. Now how much is it? तो देखिए अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 18x उधर चला जाएगा और 2by आपका नीचे आ जाएगा. सो इट्स -18 अल्फा ओवर 2b बीटा. ठीक है, ये हो गया आपका M2. नाउ वी आर गिवन सिंस द एंगल बिटवीन द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री. सो व्हाट आर वी गिवन एक्चुअली? सो एक्चुअली वी आर गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1. इजंट दैट? यही तो गिवन है बच्चों हम लोगों को, यही तो दिया हुआ है. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मींस तो ये है आपका -18 अल्फा ओवर 2b बीटा. सो वैसे तो 2 और 18 को हमें कैंसिल आउट कर देना चाहिए था, बट चलिए अब छूट गया तो छूट गया. So this 6/2 बीटा यहां पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चलिए अब यहां तो लिख ही लेते हैं 3 ओवर बीटा. Now this is equal to -1. तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चलिए 9 हो गया. So what do we get here? So we get here 27 over b बीटा स्क्वायर is equal to 1. 27 अल्फा रादर ओवर b बीटा स्क्वायर. अब देखिए क्या हम यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो देखिए See, it's a previous year question. और देखिए कितना अच्छा है कि हमें यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. The question has been framed such that कि आप बीटा स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे 6 अल्फा उठाएंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So you get 27 अल्फा over b into 6 अल्फा is equal to 1.
अल्फा अल्फा 3932 और b की वैल्यू आ गई आपकी 9/2 9/2 एंड दैट्स द आंसर. Okay, so that's your 2018 previous year question and see the beauty of the question कि आपको कहीं बहुत लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी. Neither we need to find the point of intersection. रिलेशन ऐसा दिया था कि डायरेक्ट यूज करके आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन बच्चों. ठीक है, so that was the discussion on first type of application of derivative and that is related to tangent, normal and angle between the curves. ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन एंड दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो चलिए अब आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग.